Start. Welcome back, students, to Shiksha Science Academy, and today we are going to start a new topic, that is what? Equipotential surfaces. Okay, then let's start. The word equipotential itself means what? Equal everywhere. Okay, equal in what? Potential. Okay, suppose this is a Q charge along with you, isn't it? And this is its area along with its influence can be felt, isn't it? And it has radius r. Then over here its potential is how much? Q upon r. Okay. When you will go above it, this will be, if this is r1, if it is r1, this will be r2. Then this is also a equipotential surface, r2. Taking another surface over it and taking it as r3 from here to here, then it will have q upon r3. Similarly, you will get all equipotential surfaces. These are the what? Equipotential surfaces. यहाँ के लिए हर जगह एक दूसरे का क्या है? ऑल दीज आर पैरेलल फॉर ईच अदर. तो यहाँ का जो सरफेस होगा वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल होगा. मतलब वहाँ पे हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिलने वाला है? जीरो. ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा? जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब क्या? कि पॉइंट हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की बात यहाँ पे होगी कि नहीं. यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा. That is what equipotential is all about. तो क्या definition कहता है? That any equipotential surface is a real or imaginary surface on which at each point the potential is what? Same. Let's write it. Any equipotential surface, any equipotential surface, any equipotential surface is a real or imaginary surface at each on which at each point on which at each point its potential is what? Same. Now getting? So this is for the circle. Suppose you are having the charge in the axial line like this, like this. Then due to this will be its equipotential surface, and this hole will act as a cylindrical shape over here, and another equipotential surface will be this, making another cylinder over it. Clear? When we talk about the plane sheet, the charges will be distributed like this, with having equal radius everywhere, r everywhere, and it would be parallel to the plane surface. It would be parallel to the plane surface. These are what? Equipotential surfaces. Clear? Are you getting what I mean to say? I mean to say that suppose these are the lines, curved lines. Here the potential is V1. Here the potential is V2. Here the potential is V3. I mean to say that this whole, here it will be V1, here it will be V1 everywhere. And so this will be a equipotential surface. Okay.
तो ये सरफेस का मतलब कि जैसे आप एक फुटबॉल लीजिए, टेक अ फुटबॉल का हर एक सरफेस एक दूसरे से क्या है, देखा जाए तो पैरेलल है अगर देखा जाए, ठीक है। तो दैट व्हाट आई विल से हो गया। तो अगर पॉइंट चार्ज रहा तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल्स बनेगा। फॉर द पॉइंट चार्ज, दिस वाज द पॉइंट चार्ज, फॉर द पॉइंट चार्ज यू गॉट द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल्स। ये एक स्फीयर है और ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल है, ठीक है। अगर आपके पास लाइन चार्ज है, व्हेन यू आर हैविंग दिस लाइन चार्ज, तो इस शेप का आएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका सिलेंड्रिकल शेप। अगर आपके पास जो प्लेन शीट है, शीट ऑफ चार्जेस है, तो वो कहां पे आएगा, इट विल हैव व्हाट, पैरेलल सरफेसेस। क्लियर है, इस बात को लिख लेते हैं। फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल्स। बहुत ज्यादा सरफेसेस है और सब इक्विपोटेंशियल है, तो सबको क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है। तो वैसे अगर लाइन चार्ज रहा तो वो किस शेप का होगा, और लाइन चार्ज उसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। प्लेन शीट के लिए पैरेलल, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इससे रिलेटेड हम लोग एक पहले तो ये बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा सरफेस है, एक बाउल है इस तरीके का, if you are having a bowl shape like this, तो इस शेप में you are getting a shape of like this, isn't it? वो ऐसा मान लेते हैं, ये पूरा में बाउल है, ठीक है। तो यहाँ पे शेप देखिए, यहाँ का शेप को देखिए, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ वाला शेप एक दूसरे को क्या कर रहा है, ट्रैक। ये वाला एरिया रिपेल, और ये वाला सरफेस आपको एडजस्टेड लग रहा है। दिस एरिया इज लुकिंग व्हाट, एडजस्टेड। ये रिपेलिंग, ये अट्रैक्टिंग, ये रिपेलिंग, ये एडजस्टिंग। कहना क्या चाह रहा है, आई मीन टू से दैट यहाँ पे जो चार्जेस हैं, सबसे पहले तो अगर क्लोज आएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। दूर जाएंगे तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, दे ट्राई टू एडजस्ट इट, सेट हो जाता है, सारे चार्जेस सेट हो जाते हैं। सेट होने के पीछे कोई फेनोमेना होगा, तो वो फेनोमेना उन लोगों का टेंशन होता है। तो उन लोगों के बीच में जो टेंशन हो वो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ये टेंशन सेट कब होता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस एरिया पे चार्जेस है 100 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है 100 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 60 वोल्ट। क्लियर? तो आपको पता है that the potential has the property to move from higher potential energy to the lowest potential energy, ये तो आपको पता है, that you know। तो here the potential difference will move the charge, ठीक है। वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। कितना मूव करेगा, पहले जब ये मूव करेगा तो ये 61 होगा, ये 99 हो जाएगा, जब ये 100 है तो ये 60 है, तो ये अगर 1 देगा तो ये 99 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 10 देगा तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 75। फिर अगर ये 85 और ये 5 और देगा तो ये कितना बन जाएगा 75, एंड इट बिकम्स व्हाट 85। क्लियर है? उसके बाद फिर और ये 5 देगा तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 80। फिर यहाँ से चार्ज जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, 80 हो गया, बराबर हो गया। अब ऐसे देखो, आपने इसको ऐसा रखा, ये कहीं मूव किया,
आपने इसको ऐसा मूव किया, आपने उसको इंक्लाइन सरफेस दिया तो वो नीचे चला गया, बिकॉज एनर्जी हैज अ प्रॉपर्टी टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी 80 है, तो मूव करेगा क्या? तो ये कब तक ट्रांसफर करता है चार्जेस को? जब तक वो इक्वी पोटेंशियल ना हो जाए, जब तक उन दोनों का टेंशन बराबर ना हो जाए। ये तब तक ट्रांसफर करते जब दोनों का टेंशन बराबर ना हो जाए, जब दोनों के चार्जेस बराबर ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट। तो ये शेप इस तरीके से, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एनी कंडक्टिंग सरफेस हैविंग चार्ज इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के पास कैसा चार्ज होता है, कैसा पोटेंशियल होता है? इक्विपोटेंशियल। उनका सरफेस कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल होगा। उसके पीछे रीजन आप समझ गए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाता है, और कब तक जाता है? जब तक वो दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। क्लियर है? समझ में आ रहा है व्हाट आई मीन टू से? ओके, चलो अब आगे करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हम लोगों को इसको बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो। Suppose this is an equipotential surface, clear? And this is V1, V2, V3, ठीक है? या फिर इसको आप इस तरीके से कर ले, V1, V2, V3, V1, V2, V3, and here is value is given how much? Its value is given minus 50, its value is given minus 30, and its value is given minus 10 volt. Okay, and the difference between them is of 10 mm. कितना डिफरेंस है? डिस्टेंस है 10 mm का, ठीक है? तो you have to find the electric field over here. You have to find what? Electric field over here. तो electric field के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है? is equal to minus dV by dr. Clear? Now let's check out the values. What values we are having? Change in potential difference. Change in potential difference. और जो change in potential difference होता है वो कहाँ से होता है? Highest potential to lowest potential. Highest to lowest, isn't it? तो हमारा जो highest value है, the highest value that we'll get, we'll write over here what? V2 minus V1, और ये माइनस तो पहले से है, और ये dr as it is लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, you will have a better vision. V2 we are having minus 30, isn't it? And V1 we are having minus 10. And what is the difference? 10 mm means 10 into 10 to the power minus 3. So we'll write 10 into 10 to the power minus 3. On solving, what value you will get? Minus 3 plus 10. You will get around minus 20. Minus 20 and minus you will get plus. So you will get the overall value 2 into 10 to the power minus 3 volt. Sorry, plus you will get volt per meter. That is the intensity of the electric field. So simple this is. Now we have to find the direction of the electric field. किधर है? तो ये साइन कैसा है? पॉजिटिव। अब इसका मूवमेंट देखिए, दिस इज व्हाट minus 10. minus 10 से minus 30 आ रहा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है? minus 10, तभी तो ये हायर से क्या आ रहा है? लोअर की तरफ आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन किधर? अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही वैल्यू अगर माइनस हो तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। आर यू गेटिंग द थिंग? सपोज यू आर हैविंग अ चार्ज Q over here, ठीक है?
एंड दिस इज द पॉइंट एनीवेयर. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है. सो कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे? पॉइंट ए या पॉइंट बी? पॉइंट ए पे भाई. तो ये जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, अगर आप इसको स्प्रिंग के जैसा समझ रहे, भूल जाते हैं, अगर ये स्प्रिंग के जैसा समझ रहे तो यहाँ तक दबाने में ज्यादा फोर्स लगेगा कि यहाँ तक दबाने में ज्यादा फोर्स लगेगा? तो कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है? यहाँ पॉइंट ए पे ज्यादा पोटेंशियल. अंडरस्टूड? सो अगर यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ पे पोटेंशियल 10 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. अंडरस्टूड? सो इस यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी कितना होने वाला है? 10 वोल्ट. यहाँ पे भी कितना होने वाला है? 5 वोल्ट. तो मतलब ये सरफेस इसके क्या है? इक्विपोटेंशियल है. ये इसके क्या है? इक्विपोटेंशियल है. ये इसका इक्विपोटेंशियल है. अरे गेटिंग द थिंग? याद रहे, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज 90 डिग्री टू ईच अदर. इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द लाइन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑपोजिट आप इधर आ रहा है ना. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो यहाँ पे व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट दैट इक्विपोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज 90 डिग्री टू ईच अदर. Equipotentials and electric fields are always 90 degree to each other. Here is another numerical that I would like to give you. Here is a surface given over here like this. Okay. This is the equipotential surface given at an angle of theta, that is around 60 degree. Okay, and this distance is 20 mm, centimeter I guess it's written. No, 20 mm is only written over here. ठीक है. And here the potential is 30, here is 20, and here is 10 volt. You have to find the electric potential, sorry, electric field. So E is equal to minus dB by dr. Put the values. Minus dB by dr means what? How much you will write? 30 minus 20. You will get what? 10. And how much this is? 20 into 10 to the power minus 3. You will write like that? Yes? No. Why? Because theta. Then this is what? 2 cos 60 degree, and this will become what? Sorry, 20 sin 60 degree. तो क्या आप इस डायरेक्शन को लेंगे? नहीं, you have to choose this direction. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, you can't choose this, you have to choose this. So you have to check the things कि कौन सा वैल्यूज को उठाना है. तो अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था कि either the direction is this और either the direction is this. थीटास पे, एंगल्स पे डायरेक्शन नहीं दिया जाता. ये वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, और ये डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता. सो यू विल राइट व्हाट? 20 sin 60 डिग्री. अब वैल्यू बताइए मेरे को. 20 into √3/2, so 10√3. 10√3 you will get 10 will get cancelled. 1 upon √3 into 10 to the power minus 3. Oh, sorry, I haven't got that. 10 to the power minus 3. So this will get cancelled, and you will get what? 1000 √3. Clear है? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है?
इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों? ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? नीचे। क्लियर? वंस अगेन, दिस वाज थीटा, ओके, दिस वाज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 30 minus 20, इधर ही आएगा ना, बिकॉज़ ये हाई है, ये लोअर है, इधर आ रहा है, सो यू विल गेट अराउंड 10 वोल्ट। सो दैट इज व्हाट dV। dr कितना है? दैट इज गिवन 20 mm। ठीक है? नाउ dV by dr you will get this, but for dr you either you have to use this or use this. So for this you have to use this, and that is what 20 sin 60 degrees. So the value is quite like this. Is the value clear? अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक सरफेस है इस तरीके से, you are having a surface like this, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ये इस पे भी अप्लाई कर रहा है फोर्स, ये इस पे भी अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, फोर्स के क्या करेंगे? Q1 by R, इसके लिए क्या करेंगे? Q2 by R, और इसके लिए आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स, और दोनों का फोर्स क्या होगा? अलग अलग होगा। You have what? Different force. तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, मींस you have to find the work done, that is what? VA minus VB। अगर मान लेते हैं ये A है, ये B है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा 0। क्यों? इस पे ये जो फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगा? वही फोर्स होगा जितना वो इस पर फोर्स लगा रहा है। दोनों पे जो फोर्स लग रहा है क्या, वो सिंपल है, वो इक्वल होगा, जिसकी वजह से उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इस बात को जरूर मेंशन कर लेगा यहीं पे, दैट फॉर कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इज 0, बिकॉज़ WPA इज इक्वल टू व्हाट? Clear? So pause the video and note it down this, उसके बाद हम लोग करेंगे इक्विपोटेंशियल एनर्जी। Let's start a new topic, that is electric potential energy. Electric potential energy means what? First, the word energy itself, the amount of work that is needed to bring any given charge from any point to any point. So let's understand that suppose you are having one charge Q1, you have brought it from infinity to a point and you have fixed it, so you must have done some work over here. Again you brought another charge Q2 from infinity to another point and you brought it closer to each other. They will have the property to repel each other, but you applied the force onto it, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसको आप दोनों को एक रूम पे लॉक कर दिया, इसको अलग दरवाजे से लॉक करके रखा, इसको अलग दरवाजे से लॉक करके रखा, ठीक है। अगर आप आकर इधर का दरवाजा खोलते हैं तो ये चार्ज बाहर जा पाएगा क्या? नहीं, दिस विल गो आउट, ठीक है। तो इसके पास आपने एनर्जी छोड़कर रखा, तो लाने में जो एनर्जी लगा वो एनर्जी आपने इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। दरवाजा खुला तो ये अंदर ये गया क्या? नहीं गया, ये यही रह गया। अब इसका दरवाजा खोलेंगे तो ये जाएगा, मींस आपने दोनों को आप लेकर आए और आपने उन लोगों को एक फैमिली बनाया, एक सिस्टम बनाया, सिस्टम ऑफ क्या बनाया? चार्जेस बनाया। You brought and bring it closer and they have their own energy, उनके पास खुद का एनर्जी है, that is what system of charges। हम लोग उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो let's start with the system of two charges। System of two charges। Suppose you are having two different charges, Q1 and Q2. They will have their force in between them, that is F is equal to Q1 Q2. So what will be the value at x1 if it is both are being separated by a distance what? R। दोनों को अगर सेपरेट करते हैं डिस्टेंस R से, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो कितना होगा? So you will write force on, यहाँ पे लिखते हैं force at x1, यहाँ से ला के यहाँ पे रखा, then
फोर्स ऑन Q2, वहां पे लेके गए सॉरी, ठीक है, Q2 ड्यू टू Q1। इसको पढ़ कैसे जरा देखिए, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 you will have what 1/4 pi epsilon Q1 Q2, that you will write, isn't it, and x square. So that is the force. Now you have to write the work done. So what is the work done? Work done kahan? From infinity to R point. From infinity to R point. Work done. From infinity to R. So work done के लिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने रखा है, and that formula is what? Q/4 pi epsilon R square and into Q, because आपने चार्ज को लेकर आया है, so you will write what 1/4 pi epsilon x Q1 Q2, that will be the or distance, that is what dx, that will be the value. Clear? Now work done कितना हो रहा है, ये कहाँ के लिए है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए है, तो आपको क्या करना होगा इसको ओवरऑल डिस्टेंस के लिए करना होगा, तो ओवरऑल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसको रूट ओवर निकालना पड़ेगा, तो ऑन रूट ओवर यू विल गेट दिस वन आउट, आपको बाहर क्या मिलेगा Q1 Q2, वो भी क्या है, एक चार्ज है, सो इट विल बी टेकन एज आउट Q1 Q2 4 pi epsilon, ठीक है। नाउ यू विल गेट व्हाट इनसाइड, दैट इज x स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होगा, x स्क्वायर का होगा, सो यू विल गेट व्हाट इंफिनिटी टू r, इसे हम लिखते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू r Q1 Q2 4 pi epsilon x इनवर्स 1 और ये r टू इंफिनिटी टू r लिख सकते हैं आप। Clear? So what value you will get? 1/, क्या होगा 1/x आ जाएगा, 1/x के जगह आप क्या पुट करेंगे, एक बार आप एक बार इंफिनिटी पुट करेंगे, एक बार r, चलो तब एक बार इसको r करना है तो इंफिनिटी करना है, सो इसको यहाँ पे लिखते हैं इंफिनिटी टू r, you will get Q1 Q2 4 pi epsilon and you will get 1/x r upon infinity to r Q1 Q2 4 pi epsilon। तो एक बार आप क्या पुट करेंगे r और एक बार क्या पुट करेंगे इंफिनिटी, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को क्या करते हैं माइनस करते हैं, सो द वैल्यू दैट यू विल गेट Q1 Q2 upon 4 pi epsilon into 1/r, because 1/infinity 0 हो जाएगा, तो that you will get the value। Clear है? तो ये जो वर्क डन है that will be converted into what, the energy। यहाँ लिखते हैं this work done will be get converted into electric potential energy, that is U। याद रहे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, किससे सिंबलाइज करते हैं, U से। सो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो ये हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R। क्लियर है, विजिबल है यहाँ पर। अब सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की बात करेंगे हम लोग, इफ यू हैव डन दिस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की बात करते हैं हम लोग। डेफिनेशन मैंने लिख के रखा, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस ऑफ 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट चार्जेस एंड हेंस जनरलाइज द रिजल्ट फॉर एंड पॉइंट चार्जेस। तो 3 पॉइंट चार्जेस सिस्टम करते हैं,
here system of 3 charges. Okay, let's say a diagram like this. Here I am drawing diagram. This is Q1 charge, this is Q2 charge, and this is Q3 charge. ठीक है, this will apply force onto this. So what you will write, R21. So this distance will be known as what? R21. This will be R32. This will be R31. ठीक है, ये क्लियर है? So इन लोगों के लिए आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए what you will write, U is equal to 4 pi epsilon first Q1 Q2 upon R21. For second you will write 1 upon 4 pi epsilon Q2 Q3 R32 plus 1 upon 4 pi epsilon Q3 Q1 by R31. ठीक है, तो चीजें कॉमन है, इसको कॉमन लेकर रख ले, हो क्या? तो कॉमन आने वाली चीजें क्या है अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन है, बाकी Q1 Q2 और R21 एज इट इज अंदर रह जाएंगे. इसी तरीके से आप सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस भी कर सकते हैं. ठीक है, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस करते हैं. आई गेस आप कर सकते हैं सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस. कुछ नहीं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 चार्जेस यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, से एक यहाँ पे, एक इस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ठीक है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, Q3 एंड दिस इज व्हाट Q4. डिस्टेंस तो आपको लिखने आता है, यू विल बी एबल टू राइट इट. Here that you can easily write it. अब इसके बीच में सिमिलरली इसी तरीके से निकाल देना वैल्यूज, यू विल गेट इट वेरी इजीली. ठीक है, चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड की हम लोग बात करेंगे. चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड पे अगर रहा चार्ज, छोटा सा टॉपिक है बस तुरंत क्लियर हो जाएगा. चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो उसको लाने की जरूरत पड़ेगी. इट इज नीडेड टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम दैट एक्सटर्नल सोर्स टू दैट इंटरनल सोर्स. तो उसमें भी कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इजंट इट? जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है वहां तक उसको आपको उसको लेकर आना पड़ेगा, इजंट इट? तो वहां पे आप जो लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दैट इलेक्ट्रॉन, देन सम एनर्जी इज बीइंग स्पेंट. कुछ एनर्जी उसमें क्या होता है, खर्च होती है. अगर कुछ एनर्जी खर्च होती है तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R या C Q अपॉन R, दैट यू कैन राइट. तो यहाँ पे ये वर्क डन कितना खर्च करेगा भाई? तो ये वर्क डन ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पे खर्च हुआ? चार्ज Q पे. सो इस ओवरऑल के लिए जगह आप क्या लिख सकते हैं? V. सो यू राइट V Q. सो एक और फॉर्मूला आपको मिला, V इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी U इज इक्वल टू व्हाट, QV. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू व्हाट, Q चार्ज. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. तो अगर दो अलग डिफरेंट चार्जेस रहेंगे, मान लेते हैं अगर ये प्लस रहा है, ये एक नेगेटिव रहा, मान लेते हैं अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, दोनों में से क्या होगा? अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है भाई, तो उनके बीच में क्या होगा? और एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी.
क्लियर है? अगर दो आपके पास चार्जेस है और दोनों अगर सेम चार्जेस के हैं, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, तो उनके पास जो चार्जेस आएंगे वो कैसे हो जाए, सॉरी वो जो उनके पास एनर्जी आएगी वो रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी। एनर्जी जो आएगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारा वैल्यूज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।